إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات عبادات و بندگی اس اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا ہم سے پہلے والوں کا ہمارے بعد آنے والوں کا خالق دو جہاں مالک ارض و سما ہے اللہ احد الصمد ہے لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے وہ سب سے بے مثال تھا بے مثال ہے بے مثال رہے گا وہ ہمیشہ سے با کمال تھا با کمال ہے با کمال رہے گا اس کی ذات میں برابری کرنے والی کوئی ذات نہیں وہ اکیلا مالک الملک ہے ہماری زندگیاں اس کے قبضے قدرت میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ صحت مندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں اول وقت میں جمع ہوئے ہیں ثانیاً درود نازل ہو سارے نبی اور رسولوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قربانی کیا ہوتی ہے اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے پہلی صف کا کیا فضیلت ثواب ہے تلوار لے کر جنگ کرنے لگو گے کہ میں بیٹھوں گا آگے صف میں میں بیٹھوں گا اس جنگ کو چھڑانے کی خاطر چٹیاں لکھ کر تم خراندازی نکالو گے بھئی لڑو مت چٹیاں ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے پہلی صف کا آپ اگلی صفوں کو پر کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں میرے بھائیو ہم لوگ عشرہ ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں یہ ایام اتنے خوش نصیب ایام ہیں اتنے پیارے مقبول و محترم ایام ہیں اللہ عز و جل کو سال کے 364 دنوں میں ان ایام سے بڑھ کر کوئی اور دوسرے ایام نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ولل جہاد یا رسول اللہ
کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہے؟ تو نبی نے کہا وہ آدمی جو اپنے مال کو لے کے نکلا، اپنی جان کو لے کے نکلا، اللہ کی راہ میں مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دیا، وہ ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے کے برابر آ سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اتنا زیادہ ثواب ہے ان 10 دنوں میں۔ کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے ان 10 دنوں کی۔ ان 10 دنوں میں وہی نماز ہے، وہی صبح و شام کے اذکار ہیں، وہی قرآن کی تلاوت ہے، وہی صدقہ و خیرات۔ لیکن ان 10 دنوں کی قسم اللہ کھاتا ہے سورہ فجر میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 دنوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے شفق کی، قسم ہے وتر کی۔ وتر کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، شفق کہتے ہیں 10 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ یوم وقوف عرفہ ہے، جس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ سال کے 364 دنوں میں اللہ تعالیٰ کسی دن لوگوں کو اتنے جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے، رحم زیادہ کرتا ہے، لوگوں کو معاف زیادہ کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب بندہ کھڑے ہو کر اللہ سے کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی دن اسے جنم دیا، اور اللہ تعالیٰ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ وقوف عرفات میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کیا ہے، عرفات کے میدان کے باہر رہنے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کنفیوژن میں مت رہنا، وقوف عرفہ ہم انڈیا والوں کے لیے 8 ذی الحجہ کو پڑتا ہے، 9 ذی الحجہ کو وہاں پر حج کا دن چلتا رہتا ہے 10 ذی الحجہ۔ میرے بھائیوں، جہاں آپ چاند دیکھے ہیں، اسی چاند دیکھنے کے مناسبت سے آپ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کی نیت سے ایک دن کا روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ کے دل میں زیادہ کنفیوژن ہے، آپ چاہے تو 2 3 4 5 6 8 9 دن کے لگاتار ان ایام میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رحم کرنے کی صفت زیادہ ہے، اللہ کے پاس غصہ بھی ہے لیکن غصہ بہت کم ہے، رحمتیں اللہ کی بہت زیادہ ہیں۔ ان 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ ہے جس کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں 10واں ذی الحجہ ہے جسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ اس دن کے عمل میں اللہ کے پاس خون بہانے کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ انسان جانور کا، حلال جانور کا خون بہائے، جن جانوروں کے خون بہانے کا حکم اللہ نے سورہ انعام میں دیا ہے، 8 جانور، 4 جانور اپنی فیمیل کو ملا کر 8 جانور، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، چھیلا، چھیلی۔ اونٹ، گائے، بکرا، چھیلا، یہ 4 جانور اپنے فیمیل کو ملانے کے بعد 8 جانور۔ ان 8 جانوروں کی قربانی اس دن خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی دوسری قربانی اللہ کو اتنی مقبول و محترم نہیں۔ چاہے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک گوری بہن سے شادی کرنے کے مسئلے میں جھگڑا پیدا ہو گیا، حابیل قابیل کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام نے کہا تمہارے 2 بیٹوں سے کہو اللہ کے راستے میں قربانی دے، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ قابیل کی بہن گوری بہن سے نکاح کرے گا۔ دونوں نے قربانی دی، ایک جانور کو ذبح کیا حابیل، قابیل کھیتی باڑی کر کے اناج میدان میں رکھ دیا۔ اللہ نے جانور کاٹ کر جو میدان میں رکھے تھے، آسمان سے آگ آ کر اس جانور کو جلا کر راکھ کر دی، مطلب اللہ نے اس کی قربانی قبول کی، اور جو ڈھیر سارا اناج دنیا بھر کا مال متا لگایا تھا اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کیا۔ اللہ کو دنیا کی ساری دولت ایک طرف، جانور ذبح کرنے کا عمل ایک طرف، اللہ کو سب سے زیادہ عمل جان قربان کرنے کی قربانی سب سے زیادہ اللہ کو مقبول و محترم۔ لیکن یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ سورہ انعام آیت نمبر 162 163 اللہ کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا،
अल्लाह ताला के अर्श के दाएं जानिब अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने दाएं हाथ में नामे अमाल लेकर जन्नत में जाने वाले दाएं जानिब खड़े रहेंगे। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहा, तमाम अल्लाह के औलिया, अल्लाह के नेक मुत्तकी जन्नत में जाने वाले दाएं हाथ में नामे अमल लाकर अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ेंगे। पीठ के पीछे लेफ्ट हाथ में, बाएं हाथ में नामे अमल लेने वाले अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ेंगे। अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ने वालों में अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के बिल्कुल किनारे मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा लिए हम सब के नबी, कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरवरे कौनैन सैयदुल सकलैन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा लिए खड़े रहेंगे। उस दिन अल्लाह ताला हमारे नबी के जबान से कुरान की आयत पढ़कर सुनाने लगाएगा। हमारे नबी आयत पढ़ेंगे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ लोगों, मैं दुनिया में तुमको नमाज पढ़ाने का हुक्म देता था, कुर्बानियां करने के बारे में कहता था, मैं भी नमाज पढ़ता था, मैं भी कुर्बानियां देता था। सुनो, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती मेरा जीना मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए था। मैं इसी अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ता था, इसी अल्लाह के लिए कुर्बानियां देता था, इसी अल्लाह के लिए जीता था, इसी अल्लाह के लिए मरता था। हम सब की जिंदगियां भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए होना चाहिए। हमारी नमाजें अल्लाह के लिए, हमारी कुर्बानियां अल्लाह के लिए, हमारा जीना अल्लाह के लिए, हमारा मरना अल्लाह के लिए। अगर कोई शख्स नहीं, ये बकरा फलां दरगाह के लिए, ये बकरा फलां पीरान के लिए, ये दुम्बा हमारे अब्दुल कादिर जिलानी के 11वीं के लिए अगर कोई करता है तो यह नाजायज है। अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मन ज़ुबिह लि गैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जो आदमी गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करे वो शिर्क करता है। अब आप कहते होंगे महबूब सुबानी के नाम पर काटना यह कोसा गलत है। हम महबूब सुबानी का नाम नहीं लेते, हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन उनके नाम की नजर नियाज करते हैं, ये भी जायज नहीं है। जब हमारे नबी के नाम का नजर नियाज करते हुए जानवर ज़बह करना जायज नहीं है, तो अब्दुल कादिर जिलानी ये तो उम्मती मोहम्मदी है, एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, भला उनके नाम से कुर्बानी कैसे हो सकती है? समझने वाली बात है। मेरी बातें हनफी भाइयों को कड़वी लगती है, क्या भाई नो ऐसा बोलती तोंडे। हकीकत यही है, अल्लाह के सिवा न किसी पीर के लिए, न किसी पैगंबर के लिए, न किसी रसूल के लिए, न किसी फरिश्तों के लिए, दुनिया के किसी हस्ती के लिए जानवर, उनकी रजामंदी है, उनके नजर नियाज के लिए जानवर ज़बह करना जायज नहीं है। अल्लाह ही के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हमारी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर हम कुर्बानी देने वाले नहीं बने, इस्लाम नाम है कुर्बानियों का, इस्लाम नाम है कुर्बानियों का। वक्त की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का दिन है, आप में से 75% लोग, अभी 25% लोग बाद में आए, 75% लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंबर पर चढ़ने से पहले आप लोग यहां आए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुनन नबी दाऊद जामी तिर्मिज़ी की हदीस में फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी वक्त की कुर्बानी देकर मस्जिद में अव्वल वक्त में दाखिल होगा, अल्लाह उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब देगा। जो दूसरे नंबर पर मस्जिद में आएगा, अल्लाह उसे गाय की कुर्बानी का सवाब देगा। तीसरे नंबर पर जो आएगा, बकरे की कुर्बानी, दुम्बे की कुर्बानी का सवाब देगा। चौथे नंबर पर जो आएगा, एक मुर्गे की कुर्बानी, मुर्गी की कुर्बानी का सवाब देगा। पांचवें नंबर पर जो आएगा, अंडे की कुर्बानी का सवाब देगा। उसके बाद आने वालों का नाम फरिश्तों के लिस्ट में चढ़ेगा। फरिश्ते लिख लेंगे ये जुम्मा में आए थे, अल्लाह उनको जुम्मा का सवाब दे। जैसे खतीब नंबर पर चढ़ेगा, उसके बाद जो भी आएंगे उनका नाम फरिश्तों के लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। अब आप लोग ना ऊंट खरीदे, ना ऊंट ज़बह किए, ना ऊंट तकसीम किए, लेकिन अपनी वक्त की कुर्बानी दी है। अल्लाह आपको ऊंट की कुर्बानी दिया, आप वक्त की कुर्बानी दे के मस्जिद में आए, अल्लाह आपको गाय की कुर्बानी का सवाब दिया। आप वक्त की कुर्बानी देकर आए, अल्लाह आपको दुम्बे की कुर्बानी का सवाब दिया। आप वक्त की कुर्बानी देना सिर्फ जुम्मा को नहीं, रोजाना दिन में 5 वक्त की नमाज के लिए पांचों टाइम 15 से 20 मिनट का टाइम, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज,
5 नमाजों के लिए अगर आप 15-15 मिनट लगाएंगे, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। यह वक्त की कुर्बानी है। अल्लाह आपसे कुर्बानियां मतलूब करता है। नहीं भाई, हमें खाली दावा करती है, हमें सल्फिया, हमें पक्के अहले हदीसा, हमें कुरान हदीस पर चलने वाले, हमें नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, हमें सहाबा के रास्ते पर चलने वाले। खाली मुंह के दावे हमारे, जबान के दावे हमारे, लेकिन अमली मैदान में ना हमारी जिंदगियों में नमाज है, ना हमारे पास वक्त की कुर्बानी देने का जज्बा है। कोसी तो मस्जिद तामीर हो रही, कान तो भी मदरसा बन रहा, एक यतीम गरीब मरीज है, ऑपरेशन होने वाला, उसे क्या तो भी अल्लाह के रास्ते में दो, यतीमा के वास्ते दो, मस्जिद के वास्ते दो, मदरसे के वास्ते दो। पतली गली से चोरा निकले सका कंजूसा मन को निकल जा रही, 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खैरात नहीं दे रहे। ना वक्त की कुर्बानी, ना माल की कुर्बानी, ना तुम्हारे तन मन धन की कुर्बानी नहीं देते, खाली दावे करती तो 1 नंबर का मुनाफिक बोलती उसे, मुनाफिक। खाली दावे करता, कुर्बानियां नहीं देता। अरे तुम्हारे से अच्छे दावे करने वाले नबी के जमाने के मुनाफिकान थे। उन्होंने नबी के सहाबा के सफा में खड़े होकर नमाज़ें पढ़ते थे। हमें हमारे भाइयों के बीच में खड़ोक नमाज़ें पढ़ती, मुनाफिकां सहाबा के साथ खड़ोक नमाज़ें पढ़ते थे। लेकिन जब मैदान जंग में गज़वे बदर के लिए, गज़वे ओहद के लिए मदीने से निकलते, बदर के मैदान में जाने से पहले, ओहद के मैदान में पहुंचने से पहले मुनाफिकां अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल और इनके चेले चिपटे बहाने कर को, मैं बीमार, मेरे पेट में दर्द है, हमारे अम्मा बीमार, मेरी बीवी बीमार, हमारे घर में वो कामा है, मैं अभी आ जाता हूं, सबा आ जाता हूं, ऐसा बोलने को फिच्चे गली से निकल जाते। 250 से ज्यादा मुनाफिकान थे, 250 से ज्यादा दावा करते थे। कुर्बानी देने का टाइम आया तो पतली गली से निकल जाते थे। अल्लाह ने इनके बारे में क्या कहा? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरह निसा 145 नंबर आयत। अल्लाह ने कहा ऐसे मुनाफिकों को हम जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में डालेंगे। माल की कुर्बानी का टाइम आया, नबी ऐलान करे, है कोई सहाबी जो अपने माल की कुर्बानी दे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे, गज़वे बदर के लिए, गज़वे खैबर के लिए, गज़वे खंदक के लिए। सहाबा इकराम, अल्लाह के नबी हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये लाने वाले सहाबा इकराम देते जा रहे, माल की कुर्बानी करते जा रहे। लेकिन मुनाफिका 1 रुपया नहीं देते थे। वापस कौन तो भी जंग जीत को आए तो माल गनीमत जब तकसीम होता था, वो माल गनीमत फ्री में लेने के वास्ते क्यों में जाको खड़ते थे। ऐसे मुनाफिकों को अल्लाह के नबी ने कहा ये जहन्नम के निचले गड्ढे में जाएंगे। ना माल की कुर्बानी देने का जज्बा है, खाली माल लूटने का जज्बा, ना जान की कुर्बानी देने का जज्बा है, खाली अपने आप को दावा करने का जज्बा। हमें पक्के तुम्हारे साथ किसी काम के नहीं, जबान के दावे अल्लाह के पास किसी काम के नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछता तुम्हारे में कौन था जो जबान से बहुत ऊंचे दावे करया, लंबे ऊंचे दावे करया। कौन है आओ जन्नत में नहीं बुलाता। कौन वो शख्स है जो अमल करया, जो कुर्बानियां दिया, मेरी रजा की खातिर तन की, मन की, धन की, वक्त की, जान की, माल की कुर्बानियां लाओ। कुर्बानियां देने वालों को अल्लाह बुलाएगा सामने। क्या समझते हैं आप कुर्बानी देना? मेरे भाइयों, हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूली पर चढ़ाया गया। इनको पूछते हैं खुबैब कोई तमन्ना है क्या? हाँ, 2 रकात नमाज पढ़ने की तमन्ना है। उनको छोड़ दिया गया, 2 रकात नमाज पढ़े उन्होंने, बाद में आकर सूली पर खड़े हो गए। बोलती हैं वो 2 रकात मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज, मेरी जिंदगी के आखिरी सजदे, मेरे दिल में तमन्ना आई मैं लंबे सजदे करूं। अल्लाह ये माथा तेरे लिए आखिरी बार टिका रू ना अल्लाह, जमीन पर ये सजदे तेरे लिए आखिरी बार कर रू ना अल्लाह। जी जान भर को जोश जज्बे से लंबे सजदे करने की तमन्ना आई। लेकिन फिर ख्याल आया तुम लोग कहीं हंसे ना, तुम्हें कहीं हंसे ना कि देखो मौत के डर से कितने लंबे सजदे कर रहा इन्हें, तुम्हें हंसना नहीं गा तो, तुम्हें खुश होना नहीं गा तो छोटे सजदे कर ले उड़ गया। मेरे भाइयों, सूली पर चढ़ाया गया, तीरों से मार कर धीरे इनके बदन से खून निकाल कर तड़पा कर इनको शहीद कर दिया गया। कुर्बानी किसे बोलती है? हमें जानते भी नहीं, हमें देखे भी नहीं। हमें 21 कुर्बानी मालूम, बकरे काटना, खूब डलियां खाना,
बिरयानी नमक मारना, खबाबन टंगा लेना, दावतान देना, हो गई कुर्बानी। इससे अच्छा मैं जानती हूँ कुर्बानी। अरे कुर्बानी किसे बोलती हमना मालूम नहीं। अल्लाह के रास्ते में जो कुर्बानियां असलाफ ने दी हैं उसे बोलती कुर्बानी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा 264 नंबर आयत, 264 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फक़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। सूरह बकरा की 243 नंबर की 243 नंबर की आयत, 240 पर 3 नंबर की आयत है। इस आयत का बैकग्राउंड क्या मालूम? यह आयत हजरत हिज़्क़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के बारे में नाजिल हुई। कौन इन्हों हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम बोले तो बनी इस्राइल के एक नबी। अल्लाह तबारक व तआला इस नबी के कौम को कहा था, सामने बड़ी लश्कर जर्रार है, इस्लाम को मिटाने के लिए आई है, तुम लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हुए आगे बढ़ो, जाओ जान की बाजी लगाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया। ये लोग क्या करे? कौन लड़ता जी? लड़े तो हमें, मर गए तो हमारी जोरू बेवा हो जाती, बच्चे यतीम हो जाते, हमना मंजूर नहीं। हमें लड़या मारी करने आए नहीं, हमना ये सभी जंग जिहाद बोलना नहीं, हमें लड़ते नहीं, हमें जान की कुर्बानी देते नहीं। ऐसा बोलने को नबी सामने खड़े हैं, ऐलान कर रहे हैं, आओ अपने दरवाजों से निकलो, जिहाद के लिए जाना, जंग के लिए जाना, जान की कुर्बानी देने निकलो। अल्लाह के नबी हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये चोरा, बुज़दिला, मुनाफिका, खाली दावे करने वाले पीछे के दरवाजे से निकल को भाग को चले गए। सामने दरवाजे से निकले तो नबी खड़े हुई, बुला लेक जाती जंग में, पीछे के दरवाजे से निकले, भाग को चले गए। जान कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, जंगा में जाने की जरूरत नहीं। ये पूरे कबीले वाले पीछे के दरवाजे से निकल को एक मैदान में जमा होकर भाग गए। अल्लाह के नबी सामने इंतजार कर ले खड़ी, दरवाजे खुलती हैं, आती मेरी उम्मत, आती जंग करती, कौन भी नहीं आए। अल्लाह देख रहा, पीछे दरवाजे से निकल को भाग को जा रही, अल्लाह देख रहा। अल्लाह क्या करे? फखा वहुम उलूफुन हज़रल मौत, अल्लाह बोलता है ये लोग मौत से डर गए, मौत से घबरा गए, हमें कहीं मरना, कहीं कटना, ये तकलीफ से बचने भाग गए। अल्लाह ने क्या कहा? फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, इन सब लोगों को जमीन फाड़ को अल्लाह जमीन के अंदर धसा डाला। मौत से डर रही, मौत तुम्हारी मेरे हाथ में है, तुम्हारी जिंदगी मौत मेरे हाथ में है। वो मौत, वो जिंदगी बचाने भाग रही तुम्हें, एक झटके में तुमने मार डाल तो यहां अल्लाह जमीन चीरे, पूरे के पूरे बुज़दिला मुनाफिकान को जमीन के अंदर धसा डाला, धसा डाला। अब यह मंजर हुआ यहां बनी इस्राइल में मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर निकले, दरिया नील आर पार हो गए। दरिया नील से निकलने के बाद मन्ना सलवा आसमान से उतरा सो इनको खाने, नखरे बनी इस्राइल के, हे मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे अल्लाह का कलमा पढ़ को, गवान छोड़ को आई, हमें आसमान से धूप लग रही, हमने अल्लाह को बोलो धूप हटाओगे ना? या अल्लाह मेरी कबीले को गर्मी लग रही, कहते अल्लाह जरा छाऊ दिया। अल्लाह बादलों को लाको सूरज के आड़े खड़ा करता था, छाऊ बनाता। ए मूसा प्यास लग रही है, अल्लाह को बोलो पानी का इंतजाम, जरा आगे जाएंगे चश्मे मिलते, यहाँ छोना, हमना यहाँ छोना, अल्लाह को बोलो यहाँ इंतजाम करो। या अल्लाह मेरी कौम को पानी होना कहते अल्लाह बोलता तुम्हारे हाथ में का आसा लेको पत्थर को मारो, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे फूट पड़ते हैं, पानी पिलान। भूख लग रही है मूसा, अल्लाह बोलो खाना दोगे ना? गवां छोड़ का ऐसो ने हमें कलमा पढ़ का नखरे, इतने नखरे, मन्ना सलवा आसमान से अल्लाह उतारा, हर चीज अल्लाह इनकी पूरी करते गया। अब अल्लाह इनको आजमाने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा तुम्हारी कबीले से कहो सामने कौम जब्बारीन है, इनसे जंग करना, जान की कुर्बानी देना, जान की बाजी लगाना, बोलो जान की बाजी लगाओगे ना, आगे बढ़ोगे ना? उन्होंने क्या बोले? जे हमें मारा मारी करने आई नहीं, जे हमने ये कतरा कतरी करने कटने को से हमने बुलाना नहीं तुम्हें। इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना खाइदुन। क्या बोले उन्होंने? मैं, तू
तुम तुम्हारा रब जाकर लड़ो और तुम तुम्हारा रब जाकर मरो, तुम तुम्हारा जब रब जाकर झगड़ा करो, हमें आराम से यहां बैठ को तमाशा देख ले, बैठ हमें आराम से यहां बैठती। सूरह माइदा की 24 नंबर आयत में इनके जुमलों को अल्लाह नकल करता कुरान में, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, तुम तुम्हारा रब जाको लड़ो, इन्ना हाहुना काइदून, हम यहां आराम से बैठेंगे। जान की बाजी लगाने, अल्लाह के राह में कुर्बानियां देने, पीछे हटे नारा खा, अल्लाह क्या करे, इनको सजा दिया। 40 साल तक एक कीचक वादी में भटकाया, वादी तय बोलती उसे, वादी तय में एक वादी में 40 साल तक भटकाया बनी इस्राइल को। ये 40 साल में मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को इस कबीले का नबी बनाया गया। अब जैसे ही नबी बने 40 साल तक सुबह में सफर करे तो शाम में कहां से निकले रहते वहां चाहते हैं नो, फिर सुबह में रात में सफर करे, सुबह में कहां से निकले रहते वहां चाहते। एक कीचक वादी में अल्लाह भटकाया, उस वादी से बाहर नहीं निकाला इनको। 40 साल के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बने, वही जुमला अल्लाह बोला, तुम्हारे कबीले को बोलो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दो करना, कौम जब्बारीन से लड़ो करना, अगर नहीं लड़े यहां इनको गाड़ को रख डाल दो। यूशा बिन नून, मेरे कबीले वालों चलो अल्लाह के रास्ते में जान की कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ो। नहीं आगे बढ़े, डर रहे थे, अब भी हमें नहीं आते बोले, अल्लाह यहां गाड़ डालता, कैसा जाना हमें कैसा जाना, हमारे अंदर हिम्मत नहीं ना। अब ये मैटर यहां खड़ा करको, वो मैटर कौन सा, हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम आगे के दरवाजे से निकलने का छोड़ को पीछे के दरवाजे से निकल को भागे थे ना चोरा, अल्लाह उनको एक साथ जमीन फाड़ को अंदर जो धसाया था, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के कबीले के आंखों के सामने ये मुर्दा कर को जमीन में गाड़े वाले को दोबारा जिंदा करे अल्लाह। कुरान मजीद सूरह बकरा 240 पर 3 नंबर आयत में ही अल्लाह कहता है, सुम्मा अहयाहुम, जिन लोगों को हमने जमीन में धसा को गाड़ा कर मारे थे, इनको कई मुद्दतों के बाद दोबारा इसी जमीन से हमने इनको जिंदा किया। यूशा बिन नून के कबीले वाले डर को मर रही, हमें आगे नहीं गए तो जान की बाजी नहीं दिया तो अल्लाह हमने क्या करता कि अल्लाह उनको जमीन से उठाया, जिंदा कराया। उन्होंने बोले, अरे नालायक, हाँ ये गलती हमें करे रे, अल्लाह हमेशा वास्ते गाड़ डाला था रे, हम ना तुम्हें करो न को, अल्लाह ने तो तुमने भी गाड़ डालता। देखो मौत से डरो न को, मौत अल्लाह के इख्तियार में, जान जाना है कैसा भी अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान करो, या जान बचाते हैं मुनाफिकान के सर का बुज़दिलान सर का डर को मरो न को, ऐसा बोले। फिर अल्लाह ताला उनको मौत के घाट उतार डाला। अल्लाह बोलता, इन्ना अल्लाह लज़ू फज़लिन अलन नास, हम बंदों पे अपना फजल नाजिल करते हैं, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। अब ये मंजर देखने के बाद इनके अंदर हिम्मत आई, चलो अब हमें लड़ना, नहीं का तो अल्लाह हमने गाड़ को रख डालता। अब इन्होंने लड़ने के वास्ते गए बैतुल मक़दिस फलस्तीन, यहूदियों से, उन काफिरों से जंग करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले वाले लड़े। चारशंबे की शाम जंग शुरू हुई, जुमेरात जुमा, 2 दिन की घमासान जंग के बाद जुमा का सूरज डूब रहा था। हफ्ते का दिन यहूदियों का मुकद्दस दिन, इतवार का दिन नसरानियों का मुकद्दस का दिन। अल्लाह तबारक व तआला अगर वो जुमा के दिन का सूरज डूब जाता, उन काफिरों के लिए एक दिन जो उनका मुकद्दस दिन है जंग स्टॉप हो जाती। 2 दिन की घमासान के जंग के बाद वो जंग जीतने के करीब पहुंच गए थे मुसलमान, बैतुल मक़दिस फतह करने के करीब पहुंच गए थे। लेकिन मसला क्या था, अगर ये सूरज डूब गया जंग रुक जाती। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह ये डूबते हुए सूरज को थोड़ी देर के लिए रोक ले, हम जंग जीत लेंगे। अगर ये डूब गया, इतवार के दिन जंग शुरू होगी, जब तक ये लोग अपनी फौज की तादाद बढ़ा लेंगे। अल्लाह ने कहा, ऐ यूशा तू हुक्म दे सूरज को, ये सूरज मैं अपने कुदरत से रोक लूंगा। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ढलते हुए सूरज को इशारा करके बोले, ऐ सूरज तू अल्लाह का
اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا غروب ہوتا ہے, میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا, اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم جنگ جیت نہ لے. اللہ کے حکم سے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا. یوشع بن نون نے کہا, وہ سورج ڈوبنے والا تھوڑی دیر کے لیے آسمان میں رک گیا. دنیا میں بے شمار نبی آئے, کسی نبی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو نہیں روکا سوائے یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کے. صحیح بخاری کتاب المغازی کی یہ روایت, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ڈوبتا ہوا سورج رک گیا, جنگ جیت لیے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو ڈبایا. اس حدیث میں عبرت کیا, اگر مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے, زمین و آسمان سورج اور چاند کو اللہ ہم مومنوں کے تابع کر کے چھوڑ دے گا. لیکن اگر ہم جان کی بازی نہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت ذلیل سے ذلیل کر کے رکھ دے گا. یہ ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ.